Hello friends, this is Yasuni Sadhana Arjun. Today I am going to start a very important topic under law of tort, and that is defamation. Defamation is a wrongful act against the reputation of a person. ये हम कह सकते हैं कि जो डिफेमेशन होता है ये एक पर्सन की जो रेपुटेशन है, उसका फेम है, उसका कैरेक्टर है, उसके अगेंस्ट में एक रॉन्ग होता है. डिफेमेशन is a civil wrong as well as a criminal wrong. Under criminal law, defamation has been defined under section 499 of Indian Penal Code, and under section 500 the punishment has been awarded. तो अगर हम बहुत इजी वे में देखें तो हम कह सकते हैं कि डिफेमेशन एक रॉन्गफुल एक्ट होता है जो किसी भी पर्सन की रेपुटेशन के अगेंस्ट में होता है. डिफेमेशन के साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब कभी भी दो राइट एक दूसरे में अगर इंक्रोच करने लगते हैं तब वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन दोनों राइट्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करना. बिकॉज वी हैव अ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) of Indian Constitution, and this is our fundamental right. And every person has a legal right that no one will defame him. And both the rights are correlative to each other. So it is very important for the lawmakers to create a balance between both rights. So if we talk about the introduction of defamation, we can say in a democratic setup, free speech and expression is considered to be a fundamental right. But that fundamental right is not absolute, but subject to certain reasonable restrictions, and defamation is one of them. As we have discussed earlier that no right is absolute. Generally, every right have some exceptions. हर राइट्स का कोई ना कोई एक्सेप्शंस होते हैं. और अगर किसी पर्सन से कहा जाए कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में क्या है, तो आई थिंक दैट विल बी रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन. क्योंकि अगर किसी ने अपना कैरेक्टर खो दिया, अपनी रेपुटेशन खो दी, तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचता. इसे दोबारा नहीं कमाया जा सकता. बाकी चीजें खोने के बाद दोबारा अर्न की जा सकती है. तो जैसे बाकी राइट्स के साथ कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, ऐसे ही आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो दिया गया है. साथ ही साथ अंडर आर्टिकल 19(2) में कुछ ग्राउंड दिए गए हैं जिन पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, और डिफेमेशन वन ऑफ देम. The word defamation has been derived from the Latin word defamare, which means spreading evil report about someone. डिफेमेशन वर्ड जो है ये डिफेमेर से लिया गया है. इसका मतलब होता है कि किसी के बारे में कोई इविल रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट बताना. So we can say defamation is nothing but causing damage to reputation of another person. If we discuss the definition of the term defamation, defamation has been defined by Park B in the case of Parmister versus Capult. And in this case, the court observed that a publication without justification or lawful excuse, which is calculated to injure the reputation of another by exposing him to hatred, contempt, or ridicule. We all are aware that if any wrongdoer has any legal justification for his or her wrongful act, then that person may not be held liable. So, for any statement to be defamation, it is very necessary that
that statement must be without a legal justification or without any lawful excuse. And if there is any harm due to that very statement of a person, then it is a defamation. इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी पर्सन के स्टेटमेंट से किसी पर्सन की रेपुटेशन कम होती है, उसका कंटेम्प्ट होता है, उसको लोग हेट करते हैं, वो घृणा का पात्र बनता है, तो ये कहा जाएगा कि वो डिफेमेशन किया गया है उसके साथ. As per Samand, it can be defined as the wrong of defamation lies in the publication of a false and defamatory statement about another person without lawful justification. सामंड ने और जी टर्म में इस डेफिनेशन को दिया है. सामंड का कहना है कि ये एक रॉन्ग है जो फॉल्स या डिफेमेटरी स्टेटमेंट का पब्लिकेशन होता है बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के. इंग्लिश लॉ में अगर हम बात करें तो इंग्लिश लॉ में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से डील किया गया है और ज्यूरी जो है वो केस डिसाइड करके पनिशमेंट दिलाती है. और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करना होता है राइट टू रेपुटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. If we talk under the Indian Constitution, defamation is a good ground on which a constitutional limitation on right of freedom of the expression as mentioned Article 19(2) could be legally imposed. Thus, the expression defamation has been given constitutional status. जैसे कभी हमने डिस्कस किया, Article 19(1)(a) provides a fundamental rights that is freedom of speech and expression. But there are many grounds given under Article 19(2) on which a restriction may be imposed on the fundamental rights of speech and expression. And defamation is one of them. So defamation has a constitutional status. Other than Article 19(2), the law relating to the tort of defamation from the point of view of distribution of legislative power would fall under actionable wrongs mentioned in entry 8 of the concurrent list in the 7th schedule to the Constitution of India. We all are aware that under Indian Constitution there are 12 schedules, and in 7th schedule there is a provision in which legislative distribution has been given between central and state. There are 3 lists under 7th schedule, that is union list, state list and concurrent list. And subjects provided under union list, the law making power subsists with central government. On the matters of state government, law will be made by the state government. And if there is any subject provided under the concurrent list, then law may be made by the central as well as state government. But if on a specific topic provided under concurrent list, a law is made by the central government and state government, then the law made by central government is prevailed. But there is an exception of this rule that is called doctrine of repugnancy, in which if a state takes permission of president, then the law made by state on a concurrent list subject may be prevailed. Types of defamation. Defamation may be committed in 2 ways. First one is by speech. Second one is in writing. Speech is called slander. Writing is called libel. And writing means like physical symbols, statutes, affix, pictures, caricatures, wax models, etc. Though under the common law of England, distinction is made between the two in various aspects, but in India, no such distinction has been made. This distinction is according to common law, or we can say in England scenario.
Libel is a defamation in some permanent form because it is a written or printed form. Slender defamation is transit from spoken words or gestures. At common law, a libel is a criminal offense as well as civil wrong. Under Indian law, both libel and slander are criminal offense and civil offense, because there is no any difference between libel and slander in Indian scenario. Libel shows a greater deliberation and raises a suggestion of malice. Slander may be uttering our words in the heat of moments and under a sudden provocation. कहते हैं लाइबिल जो है ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ी चीज है क्योंकि ये परमानेंट फॉर्म में होता है. स्लेंडर जो है वो हो सकता है प्रोवोकेशन की वजह से तुरंत कोई पर्सन जो है वो रिप्लाई कर देता है. ये कह रहे हैं कि आ लाइबिल कंड्यूस टू अ ब्रीच ऑफ पीस. लाइबिल जो है वो किसी भी इंसान की पीस को ब्रीच करता है. वो कहते हैं स्लेंडर नहीं करता है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है. भाई अगर आप डिफेमेशन करेंगे, चाहे वो आप इन राइटिंग करें चाहे आप ओरल करें, उसकी पीस तो ब्रीच होगी होगी. इसलिए आगे कहा गया कि हाउएवर इंडियन लीगल सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्शन, कि हमारे यहाँ ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. Now we are going to discuss essentials of defamation. For a statement to be defamation, it is very important to fulfillment of some essentials element. That is, there must be a defamatory statement. First one, statement must be a defamatory one. The defamatory statement must be understood by right thinking or reasonable minded persons as referring to the plaintiff. Whether a particular statement is defamatory or not, it depends what prudent person of the society thinks about that statement. And there must be a publication of defamatory statement. Publication means it must be communicated to some other person other than the plaintiff. तीन चीजें होनी चाहिए. पहली बात तो स्टेटमेंट डिफेमेटरी हो. कोई स्टेटमेंट डिफेमेटरी है या नहीं है, इस बात से पता लगेगा कि सोसाइटी के प्रूडेंट पर्सन उस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं. और उस स्टेटमेंट का पब्लिकेशन होना जरूरी है. पब्लिकेशन का मतलब है जो प्लेंटिफ है, जिसका डिफेमेशन किया गया है, उसके अलावा, उसके सिवाय किसी और की नॉलेज में भी वो स्टेटमेंट आना चाहिए. क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि स्टेटमेंट और अ डिफेमेशन इज अ रॉन्गफुल एक्ट अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन. क्योंकि रेपुटेशन के अगेंस्ट में एक ऑफेंस होता है या रॉन्ग होता है. अब हमारी रेपुटेशन क्या है, ये हमारी नजर में क्या है, इससे डिपेंड नहीं करता है. ये सोसाइटी की नजर में क्या है, और सोसाइटी में से भी जो जनरल पब्लिक है, जो प्रूडेंट पर्सन है, उनकी नजर में क्या है. इसलिए अब एक टेस्ट है कि whether any particular defamatory statement or we can say any statement is defamatory or not. इसके कुछ रूल्स हैं. क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा? There are certain established rules to determine whether statement is defamatory or not. The first rule is that the whole of the statement complained of must be read and not only a part or parts of it. जब भी कोई हम स्टेटमेंट डिफेमेटरी लेंगे तो हम पूरे का पूरा स्टेटमेंट उठाएंगे. ये नहीं हो सकता है कि उसका कोई एक पार्ट हम उठा लें, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि अगर पूरे स्टेटमेंट में से केवल एक ही पार्ट आप उठा के दिखाएं तो वो डिफेमेटरी लगे, लेकिन अगर पूरे स्टेटमेंट को हम देखें तो वो डिफेमेटरी नहीं है. तो हम कोई एक चीज नहीं उठा सकते, हमें पूरा स्टेटमेंट लेना होगा, एक चीज. The second is that words are to be taken in the sense of their natural and ordinary meaning. अब जो भी वर्ड्स हैं, क्योंकि एक वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, प्लेस टू प्लेस भी मीनिंग वेरी कर जाते हैं. हो सकता है यूपी में किसी चीज का मीनिंग और हो, पंजाब में उसका मीनिंग कुछ और हो. तो हमें उस वर्ड्स का मीनिंग निकालना है, वो ऑर्डिनरी सेंस में निकालना होता है, और जो नेचुरल जगह है, जो प्लेस है, उसी के हिसाब से निकालना होता है. The court must have regard to what the words would convey to the ordinary man. अब कोर्ट को ये देखना है कि ये वर्ड्स जो है एक ऑर्डिनरी मैन उसका क्या मतलब निकालेगा. ऑर्डिनरी मैन का मतलब क्या है? प्रूडेंट पर्सन से. The test to be applied for the determination of the question whether a statement is defamatory is the answer to the question
would the words tend to lower the plaintiff in the estimation of right thinking members of society? Whether a particular statement is defamatory or not, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या उस स्टेटमेंट से सोसाइटी के प्रूडेंट पर्सन के बीच में जो प्लेंटिफ है, क्या उसकी रेपुटेशन कम हुई है, क्या उसके कैरेक्टर डाउन हुआ है। अगर हुआ है तो वो वर्ड डिफेमेटरी है। एक केस हुआ था इस पे आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इट इज आल्सो नोन एज ऑटो शंकर केस, डिफेमेशन पे बहुत लीडिंग केस है। इसमें एक तमिल मैगजीन थी नखीरन, इसमें एक पर्सन की जो ऑटोबायोग्राफी है वो पब्लिश की गई और ऑटो शंकर के नाम से। इसने 6 मर्डर कर रखे थे और इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था। जब अपोज किया गया इसकी तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा the newspaper could publish the life story so far as it appears from the public records, even without the consent of authority. But if they go beyond the public record and publish, they may be causing defamation. मतलब अगर पब्लिक रिकॉर्ड से कोई चीज लेके कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन अगर किसी चीज को पब्लिश करता है तो ये डिफेमेशन नहीं है। इवन विदाउट परमिशन ऑफ अथॉरिटी और विदाउट परमिशन ऑफ दैट पर्सन जो है वो ये कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी के प्राइवेट रिकॉर्ड से कोई चीज लेते हैं तो फिर वो डिफेमेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, एक होता है इनिंडो। इनिंडो क्या होता है कि ये वर्ड्स अगर आप इसको देखेंगे तो वर्ड्स से लगता है कि ये डिफेमेटरी नहीं है, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ये डिफेमेटरी ही है। कि वर्ड्स डिफेमेटरी नहीं होते लेकिन सेंस डिफेमेटरी निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्लास में किसी का मोबाइल चोरी हो गया और अगर कोई पर्सन कहता है कि देखिए आप किसी की भी तलाशी ले लीजिए, लेकिन मिस्टर ए की तलाशी मत लीजिएगा, वो बहुत शरीफ इंसान है, वो आज तक उसने कभी चोरी नहीं की। पूरा क्लास समझ जाएगा कि ये मोबाइल किसने चुराया है, ए ने ही चुराया है और ए की तलाशी लेनी चाहिए। या ये होता है कि जैसे किसी ने कह दिया अरे भाई तुम तो बिल्कुल मंथरा हो। अब सबको पता है कि मंथरा कौन थी। मंथरा एक दुष्ट दासी थी कैकेयी की रामायण में। So we can say in India means the word which are not defamatory in their ordinary sense, but may nevertheless convey a defamatory meaning owing to the circumstances. Mere interpretation of statement is not sufficient to allege an injury, but it must be supported by extrinsic facts or matters. For example, A says to V that she is Manthara, who was wicked servant in the house of Lord Ram, who caused रामायण। इट इज इन इंडियो। तो इन इंडियो का मतलब होता है कि इसमें वर्ड डिफेमेटरी नहीं होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से कहे जाते हैं कि उसका सेंस डिफेमेटरी निकलता है। ये इन इंडियो कहलाता है। डिफेंसेस क्या क्या है? एक तो जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ सबसे बड़ा डिफेमेशन है कि आपने जो भी बात कही है अगर वो सच है तो कोई डिफेमेशन नहीं है। सच बात कहने का आपको राइट है, चाहे उससे किसी का कितना भी अपमान होता हो। डिफेंस ऑफ फेयर कमेंट, अगर हम पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी सोशल प्रॉब्लम पे अपना एक फेयर कमेंट देते हैं तो ये कभी भी डिफेमेशन में नहीं आएगा। जैसे ये कोकन उन्नति मिरमंडल एंड अदर्स वर्सेस बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स का केस था। बॉम्बे हाई कोर्ट व्हाइल डिसमिसिंग सूट फॉर डिफेमेशन फाइल्ड बाय प्लेंटिफ हैज हेल्ड दैट, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? Defendants have shown and proved the truthfulness of the statements and fair comment made by them in public interest. The statement must be a fair statement and it is in public interest. Then the defamation of the plaintiff alleged by them is therefore amply justified. अगर fair comment किया है, सही बात कही है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कही है, तब भी ये डिफेमेशन नहीं होगा। एक होता है डिफेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रिविलेज। कुछ लोगों को एब्सोल्यूट प्रिविलेज दिया गया है, जैसे काउंसिल हो गया, ज्यूरी हो गया, विटनेस हो गया, पार्टीज हो गया।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग अगर कोई भी वर्ड कहा गया है तो ये डिफेमेटरी नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, प्रोसीडिंग से हम अपनी कोई ओपिनियन निकालेंगे तो डिफेमेटरी नहीं होगा, और अगर पहले से हमारी किसी ओपिनियन के ग्राउंड पे अगर हम कहेंगे कि प्रोसीडिंग गलत है तो डिफेमेशन होगा। जैसे इलस्ट्रेशन देखिए, हमने मान लीजिए कहा कि ए ने जो गवाही दी है कोर्ट में वो ऐसी दी है, इसे देख के लगता है कि ए जो है वो बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, ये डिफेमेटरी नहीं है। इसको पलट दीजिए आप जरा, ए एक भ्रष्ट आदमी है मैं जानता हूं, इसीलिए उसने कोर्ट में ऐसी गवाही दी है, ये डिफेमेटरी है। क्योंकि ए भ्रष्ट है, ये आपकी ओपिनियन कोर्ट प्रोसीडिंग से नहीं बनी है, पहले से ही आप मान रहे हो कि ये भ्रष्ट है इसलिए उसने ऐसी गवाही दी है, ये डिफेमेशन है। अब उसकी गवाही ऐसी है जिससे लगता है कि वो एक भ्रष्ट आदमी है, ये आपकी एक ओपिनियन हो सकती है। कंसेंट, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, अगर किसी पर्सन ने कोई कंसेंट ही दे दी है, मान लीजिए हमने कंसेंट दे दी, ठीक है आप मेरी ऑटोबायोग्राफी जो है वो छापिए, जैसे संजय दत्त की जो मूवी आई है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आदमी का डिफेमेशन हो सकता है, डिफेमेटरी आ सकता है, लेकिन उसने अलाउ किया है तो आप कोई डिफेमेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपने कंसेंट दी है। अपॉलजी, कुछ किया उसके बाद सॉरी बोल दिया। कभी कभी क्या होता है कि आदमी की बात, जैसे अभी आप अगर देखते हो तो एक दो दिन पहले सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था विराट के लिए, जिसमें अनुष्का बहुत नाराज हुई है और बाद में फिर उन्होंने कहा है, काफी ये डिस्प्यूटेड रहा। इसके बाद एक न्यूज चैनल पे आके सुनील गावस्कर से क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने उस चीज को माफी तो नहीं मांगी लेकिन बिल्कुल क्लियर किया कि उनका मतलब ये था ही नहीं डिफेमेटरी का। सुनील गावस्कर का कहना था कि विराट जिस हिसाब से खेल रहे हैं तो जैसी बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे वैसा ही खेल होगा, और लॉकडाउन में इन्होंने एक वीडियो आया था विराट का जिसमें अनुष्का बॉलिंग कर रही है और ये बैटिंग कर रहा था, तो गावस्कर ने कहा कि जब अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अच्छी बॉल कैसे खेल पाएंगे, मतलब उनका कहने का मतलब ये था। बाद में न्यूज चैनल पर उन्होंने क्लियर किया कि वो ये कहना चाहते थे कि लॉकडाउन में किसी को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला है और बिना प्रैक्टिस के हर पर्सन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी चाहे वो कितना भी अच्छा हो, मतलब उन्होंने अपनी बात को आगे जाके क्लियर किया। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर हमने कोई बात कह भी दी है, कहने के बाद उसके बाद दोबारा, जैसे न्यूज़पेपर में किसी के लिए कुछ ऐसी चीज निकल गई जो डिफेमेटरी है, और अगर न्यूज़पेपर अगले ही दिन अपने आप को क्लियर करे कि नहीं 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 ये हमसे गलत निकल गया, ये मिस्टर एक्स नहीं है ये तो मिस्टर वाई है, और मिस्टर एक्स तो बहुत अच्छे इंसान है, तो अगर आपने कुछ किया उसके बाद अपॉलजी कर दी तो फिर आपको इसका एक डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी करके आप केवल सॉरी बोल दीजिए काम चल जाएगा, क्योंकि वो पर्सन सेटिस्फाई भी होना चाहिए ना उससे। दूसरा सबसे बड़ी बात है इसमें इंटेंशन का बहुत रोल रहता है। अगर हमसे मान लीजिए, क्योंकि डिफेमेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमने डिफेमेशन करने के लिए ही गलत बात कही है, हो सकता है कि हम गुड फेथ में कह रहे हैं, हम गुड फेथ में कह रहे हैं लेकिन उस पर्सन का तो डिफेमेशन हुआ है, तो या तो हमें सॉरी बोल के उसको क्लियर करना चाहिए, तब तो चलिए हो सकता है कि आपको सॉरी मिल जाए, माफ कर दिया जाए। लेकिन आपका इंटेंशन ही है उसको डिफेमेशन करने का, आप सोच लिया ठीक है इसको डिफेम करते हैं बाद में सॉरी बोल देंगे, अगर ये प्रूव हो गया तो आपकी सॉरी भी हो सकता है कि इसका डिफेंस ना हो, क्योंकि सॉरी जो है ये एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है। जैसा कि एलडी जैकवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में कोर्ट ने कहा भी, कोर्ट ने बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा है, वी आर सॉरी टू से वी कांट सब्सक्राइब टू द स्लैप से सॉरी एंड फॉरगेट, बोले मतलब हमें खेद है, हमें दुख है, वी आर सॉरी टू से, ये कहते हुए हमें दुख हो रहा है, हमें खेद है कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि कोई किसी को मारे उसका सॉरी कह दे वो भूल जाए, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि टू से सॉरी एंड टू फील सॉरी वो था डिफरेंट थिंग्स। कहने का मतलब था कि अगर कोई पर्सन इंटेंशनली ही किसी को डिफेम करे उसके बाद सोच के रखा हो ठीक हम सॉरी बोल देंगे, अब आपने सॉरी बोला, मान लीजिए डिफेमेशन 100 लोगों ने सुना, सॉरी नहीं सुना, सुन के बाद भी हो सकता है लोगों के मन में क्या रहेगा, उनके मन में ये तो आ ही गया है कि हाँ ये चीज हुई है,
तो अगर ऐसा है तो ये एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है। इसके अलावा क्योंकि अभी हम टॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डिफेमेशन जो है ये सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों है। तो सिविल के हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, अगर आप इसको और थोड़ा क्लियर करना चाहते हो तो सेक्शन 499 की एक बार रीडिंग कर लीजिए, और सेक्शन 500 में पनिशमेंट दिया है मैक्सिमम 2 इयर्स का, और फाइन और बोथ। तो ये हमारे डिफेमेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी ही आऊंगा। और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अगर इसका 1% भी बेनिफिट आपको मिल रहा है तो वो बेनिफिट सोसाइटी में हर इंसान को मिलना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल नहीं है तो प्लीज इसको बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक्स अ लॉट।